Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the second class of Calculus 1. Our today's topic is slope. आज हम slope equation of straight lines उसको find out करने के different ways उसके बारे में बात करेंगे और कुछ हम इसी के साथ सर्कल के बारे में बात करेंगे। इस सब को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो ये कार्टेशियन सिस्टम हमारे पास क्या है? फर्स्ट लेट अस डिस्क्राइब दिस द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। वी हैव दिस द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस perpendicularly like this one. So here we have the origin means 0. This is the called x axis, इसको हम लोग x axis कहेंगे, and this is the y axis. And here we have 1, 2, 3 up to show on the positive infinity, and here we have -1, -2, -3 up to show on minus infinity. This is the positive side of y axis up to show on we have the plus infinity, and similarly if we have -1, -2, and this is the negative side of the y axis. So these are the x axis, y axis, and this O we call it the origin. इसको हम लोग origin कहेंगे। ये इसको इस साइड को हम लोग positive side of the positive x axis, और ये आपके पास this side, this one, this is the negative side of x axis. And likewise we can say that this is the negative side of the y axis and this is the positive side of the y axis. So there are the 4 quadrants. The whole plane is divided into 4 parts. This is the first quadrant, this is the second quadrant, this was the third quadrant, and this is the fourth quadrant. In the first quadrant, if we have the ordered pair any point P, and here we have the AB. Here AB are the real numbers, means this is the denoted by, if we write it xy, then it will be more good. X represent the x axis and y represent the y axis. So यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा तो इसका मतलब है कि x भी वो पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा x अगर आपके पास 3, 4 है, यहाँ पर अगर आपके पास 4 है तो ये आपके पास 3 और यहाँ पे 4, ये वाला पॉइंट आपके पास 3, 4. इफ यू ऑब्जर्व दैट बोथ 3 and 4 आर पॉजिटिव, कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपका x कंपोनेंट जो x कोऑर्डिनेट वो भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपने पॉइंट यहाँ पे लेना है x अगर आपके पास दिस वन और ये वाला -4, तो इट इज क्वाइट क्लियर कि आपके पास x तो आपके पास पॉजिटिव आपके पास क्या होगा, आपके पास -3, x आपके पास x आपके पास यहाँ पे 4 है और y आपके पास 3 है, तो यहाँ पे आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x आपके पास -4 होगा, -4, और y आपके पास पॉजिटिव 3 है क्योंकि ये x एक्सिस से ऊपर है, तो x एक्सिस से ऊपर पॉइंट होने का मतलब है कि y एक्सिस के दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव होंगे। तो अगर आपके पास तीसरे क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट अगर आपके यहाँ पर लिखना हो तो ऑब्वियसली, अब जनरली मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ जनरली, कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका x पॉजिटिव होगा और y आपके पास नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x नेगेटिव, y पॉजिटिव, and in the third quadrant both are negative, and in the fourth quadrant the first x axis the value of x would be positive and the value of y would be negative. So these are the basic things in the coordinate Cartesian coordinates. Now let us describe the slope. Slope क्या चीज़ है? दो चीज़ें हैं, एक आपके पास रन एंड राइज। ये रन और राइज का क्या कॉन्सेप्ट है? सो फर्स्ट लेट अस डिस्क्राइब दिस वन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम एंड देन वी शैल मूव फॉरवर्ड।
if we have a point, let's say x1 y1, and we have another point p2, this is denoted by x2 y2. The delta y is denoted by, in fact, the difference of y coordinate y2 minus y1, and delta x, this is the difference of x coordinates x2 minus x1. These are called the increments. So this is the rise. Rise means अगर आपके पास ये दो पॉइंट्स होंगे तो ये आपके पास means the slope, this is the m denoted by rise over run, and the rise is y2 minus y1 and x2 minus x1. But how we can explain geometrically, इसको हम लोग geometrically कैसे explain कर सकते हैं? So अगर आपके पास एक ये वाला पॉइंट है, दिस इज दी x1 y1, और यहाँ पे आपके पास कोई दूसरा पॉइंट है x2 y2, एंड दिस इज द लाइन जो इन दोनों को आपस में मिला रही है, और ये आपके पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपके पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है. तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपके पास ये वाली वैल्यू जो होगी ये वाला x1 है, और ये आपके पास है दिस इज दी y1, एंड सिमिलरली अगर अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपके पास x2 है, और ये वाली वैल्यू आपके पास द होल इज y2. अगर इस x एक्सिस के पैरेलल अगर हम ये वाली लाइन ड्रॉ करें, ये वाली लाइन, तो क्लियरली आपके पास ये वाली जो डिस्टेंस होगा ये वाला y1 होगा. एंड व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस, व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस, दिस वन, ये आपके पास होगा y2 माइनस y1. एंड सिमिलरली यहां से लेकर बेटा आपके पास यहां तक डिस्टेंस x2 है, यहां से लेकर यहां तक x1 है, तो व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस, दिस वन, दिस वुड बी x2 माइनस x1. दिस इज द राइज एंड दिस इज द रन. सो राइज ओवर रन विल गिव यू द स्लोप. ये आपका स्लोप डिफाइन करता है. तो स्लोप आपके पास क्या होगा? मैथमेटिकली अगर आपके पास दो पॉइंट्स हों P1 विच इज इन फैक्ट x1 y1 और P2 अगर आपके पास x2 y2 होगा, तो दोनों में आपका y कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस होगा वो y2 माइनस y1, और ओवर x2 ओवर x1 दिस विल डिफाइन द स्लोप. इफ वी राइट इट properly and mathematically in the form of definition, then how we can write and how we can define? So let's define the slope. Slope आप कैसे define करेंगे? The constant denoted by m is rise over run. In fact, this is the delta y over delta x is y2 minus y1 x2 minus x1 is the slope of the non-vertical line P1 P2. तो स्लोप आपके पास किस चीज का आ रहा है? स्लोप हमेशा किसी नॉन वर्टिकल लाइन का होगा. अगर लाइन वर्टिकल होगी तो ऑब्वियसली इसका स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा. रीजन आपके पास राइज तो होगा लेकिन रन नहीं होगा. उसकी वजह रन नहीं होगा अगर आपको परपेंडिकुलरली इफ यू आर मूविंग, अगर आप लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं किसी जगह, आप ग्राउंड फ्लोर से तीसरे फ्लोर पर लिफ्ट पर जा रहे हैं, तो स्लोप आपका अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि राइज तो है, रन एक्स एक्सिस पर आपके पास डिफरेंस नहीं होगा. सो स्लोप वुड बी द अनडिफाइंड. तो ये P1 P2 ये वाला पॉइंट P1 है और ये P2 है. इस लाइन का ये स्लोप आपके पास डिफाइन होगा. m is equal to the difference of y coordinates over difference of x coordinates. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इसकी कोई एग्जाम्पल देनी हो क्या, तो कैसे एग्जाम्पल यहाँ पर वी कैन गिव P1 अगर आपके पास एक पॉइंट हो 2 3 और P2 अगर आपके पास हो 5 7, देन द स्लोप कैन बी डिफाइंड एज आपके पास अब यहाँ पे y2, इफ यू डिनोट दिस इज द x1, दिस इज द y1, दिस इज द x2, दिस इज दी y2, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे तो y2 माइनस y1 मीन 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट x2 मीन्स 5 और माइनस x1 की जगह आपके पास -2 आ जाएगा. 7 माइनस 3 इज 4
divided by 5 minus 2 is 3, then slope would be 4 by 3. तो अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो उनका स्लोप जो है वो आप कैसे निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स ओवर डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स. तो यहां से द क्वेश्चन इज दिस कि स्लोप तो आप निकाल सकते हैं, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर आपको फाइंड आउट करनी हो, किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं. उसका आंसर ये है, सिंपली अगर किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो यू नीड टू थिंग्स, हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है. एक उसके स्लोप के बारे में हम जानते हो और दूसरा आपके पास एक गिवन पॉइंट होगा. तो अगर हमारे पास पॉइंट और स्लोप आ जाए तो बड़ी ही आसानी के साथ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इस सारी बात को मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है, हाउ वी कैन राइट दिस. द इक्वेशन y is equal to y1 m into x minus x1. So is the point slope equation, is the point slope equation, or we can write it as simply y minus y1. अगर आप इस y को y1 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसको याद रखने में आपको आसानी होगी. सो y minus y1 is equal to m x minus x1. यहाँ पे x1 y1 these are the given points. ये गिवन पॉइंट्स हैं, या फिर आप अवेलेबल जो डाटा है, जो एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर आपको कोई डाटा गिवन होगा, आप वहाँ से इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं. तो m आपके पास स्लोप है, गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इसको मुख्तलिफ जो अवेलेबल मटीरियल होंगे, टेक्निक्स होंगे, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन द मेन फार्मूला इज दिस वन. मेन फार्मूला आपके सामने यही है जिसको आप बार बार इस्तेमाल करेंगे. तो इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल अगर आपके सामने मैं रखना चाहूं तो किस तरीके से राइट द, मैं इसकी एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं. सो लेट्स राइट दिस एग्जाम्पल. राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट एन equation of line passes through the point 2 3 and having slope minus 3 by 2. सिंपली आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो 2 3 में से पॉज करती है और उसका स्लोप -3/2 है. मीन आपके पास एक गिवन पॉइंट है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये 2 3 एक पॉइंट है और यहां पर कोई एक लाइन है जो इसमें से इस पॉइंट में से पास करती है और उसका कोई स्लोप आपके पास -3/2 है, एनी स्लोप. तो आप इसकी इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. मींस कि जो गिवन आपके पास अवेलेबल डाटा है, पहले उसको आप क्लैरिफाई करें कि आपके पास अवेलेबल मटेरियल क्या है. अवेलेबल मटेरियल आपके पास क्या है, गिवन पॉइंट है. मींस पी आपके पास जो गिवन है वो है आपके पास 2 3 और स्लोप आपके पास गिवन है -3/2. दो बातें आपको यहां पर गिवन है. तो अगर आप अपने फार्मूला के ऊपर थोड़ा सा एम्फसाइज करेंगे, अगर आप इस फार्मूले के ऊपर एम्फसाइज करें तो स्लोप आपके पास गिवन है, पॉइंट भी आपके पास गिवन है. पॉइंट गिवन होने का मतलब है कि ये गिवन पॉइंट x1 y1 ये आपके गिवन पॉइंट को शो करता है. तो मींस x1 आपके पास यहां पे कितना है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये x1 आपके पास यहां पे 2 है और यहां से अगर आप ऑब्जर्व करें तो y1 आपके पास क्या है, 3 है. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर आप इसको पुट करें, m भी आपके पास है. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर आप यहां पे इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट, ये जरूर बात मेंशन करें, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म इसको कहते हैं इस वजह से हैं कि एक पॉइंट और एक स्लोप, स्लोप और पॉइंट दो बातें गिवन है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट द पॉइंट स्लोप फॉर्म. तो ये आपके पास होगा y minus y1, ये देखें y minus y1. तो y1 की जगह पे आप क्या लिखेंगे,
सो दिस वुड बी 3 एंड इज इक्वल टू, ये m है, m आपके पास गिवन है, दिस इज द -3/2 और x माइनस, हेयर इज द x माइनस x1, x1 इज इनफैक्ट आपके पास 2 है, तो दिस वन इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज मीन कि ऊपर वाली बात से सिंप्लीफिकेशन के रिजल्ट में आप ये नीचे वाला बात लिख सकते हैं, 2 को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 2y माइनस 6, 2y 2 3 आर 6 और ये आपके पास -3 और +6, ये -3 माइनस माइनस +3 2 आर 6। बिल्कुल वैसे ही आप इसको एक तरफ करके इक्वल टू 0 के तौर पे लिखना चाहें या x y वाली टर्म्स को एक तरफ लिखना चाहें, इट इज़ टोटली अप टू यू। वी कैन राइट इट 2y प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। -3x को अगर आप राइट से लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे यू विल गेट 3x और +6 को आप इधर करेंगे तो माइनस, तो सिंपली वी कैन राइट दिस 3x प्लस 2y minus 12 is equal to 0. So this is the equation of the straight line. So equation of which straight line? ये किस straight line की equation है? The line, this is the equation of the straight line passes through the point 2 3 and having -3/2. अगर कोई equation इसमें से कोई लाइन, ये वाली लाइन इसमें से अगर पास करती है तो x और y की वैल्यू अगर आप यहां पे पुट करोगे तो ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। सेटिस्फाई होने का मतलब है कि आप खुद से फैसला कर सकते हैं कि आया कि आपने जो काम किया है वो सही है या गलत है। मैं इसको चेक करने का सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं कि x की जगह पे 2 पुट करें, y की जगह 3 पुट करें। x की जगह पे मैं अगर 2 पुट करूं 3 2 आर 6 और y की जगह पे अगर मैं यहां पर 3 पुट करूं अगेन 3 2 आर 6, 6 + 6 12 एंड 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो इक्वेशन आपने फाइंड आउट की है ये इक्वेशन दैट इज द करेक्ट, ये काम आपका बिल्कुल सही है। तो आप अपने सॉल्यूशंस को साथ डिफरेंट टेक्निक से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये तो वो बात थी कि जब आपके पास एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन हो। तो अगर कोई ऐसी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी पड़े, ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट में से गुजर रही हो, प्लीज नोट दैट द फर्स्ट थिंग इज दिस वन। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने फाइंड आउट की यूजिंग इक्वेशन यूजिंग द पॉइंट एंड स्लोप। इसकी मदद से आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को पहले आपने फार्मूले को लिखा और उसकी मदद से आपने एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और बुक में इस किस्म की एक्सरसाइज मौजूद है, आप इसको देख भी सकते हैं। सो द सेकेंड थिंग इज, सेकेंडली इसी बात को कंटिन्यू करते हुए अगर आपने ऐसी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करना हो जो 2 पॉइंट में से गुजरे, 2 पॉइंट का मतलब अगर आपके पास एक पॉइंट ये वाला है P1 जिसके कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, मींस यहां पे x1 है y1 है और दूसरा पॉइंट आपके पास है x2 y2, ये 2 पॉइंट्स हैं जी। अगर इन 2 पॉइंट्स में से कोई लाइन गुजरती है तो इस लाइन की अगर आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं? द क्वेश्चन इज दिस, आपके पास सवाल ये पैदा होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि स्टार्ट में तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए 2 बुनियादी चीजें आपको चाहिए, एक पॉइंट और एक स्लोप। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपके पास तो यहां पर एक पॉइंट चाहिए तो 2 पॉइंट हैं भैया, तो ज्यादा जबरदस्त बात है कि 2 पॉइंट है, आप कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट तो आपके पास गिवन है। सेकेंडली व्हाट यू वांट, आप क्या चाहिए? आपको स्लोप चाहिए। तो स्लोप के लिए तो 2 पॉइंट्स चाहिए ऑब्वियसली जो यहां पर मौजूद हैं, तो आप स्लोप भी निकाल सकते हैं। यहां पर स्लोप गिवन नहीं है लेकिन अवेलेबल जो डाटा है वो इतना गिवन है कि जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी के साथ स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मैं सिंपली अगर आपके पास इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूं तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो आपके पास इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लिखता हूं, एग्जाम्पल कि फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स। अब वो जो 2 पॉइंट्स हैं वो आपके पास -2, -1 पासिस थ्रू -2, -1 एंड, और जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास यहां पर है
3 4 3 4। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो आप अपनी बुनियादी फार्मूले और रिक्वायरमेंट पर ही जोर दें, उसी को ही जहन में रखें। अब ये किस इक्वेशन के बारे में आपको कहा गया है? अगर आप थोड़ा सा कार्टेशियन सिस्टम को ड्रॉ करें तो इस कोऑर्डिनेट को आप इस ऑर्डर्ड पेयर को देखिए, x -2 है और y -1 है। ये आपके पास -1 -2 और यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो -1 है। तो y की वैल्यू -1 का मतलब ये है कि आपके पास जो पॉइंट है वो यहाँ पे है -2 -1, ये वाला पॉइंट है जी। साफ जाहिर है कि दोनों नेगेटिव हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इसकी वैल्यू ये वाला ऑर्डर्ड पेयर लाई करता है। और पासिस थ्रू x की वैल्यू 3 और y की 4, x3 1 2 3 1 2 3 और y की वैल्यू 1 2 3 और 4। तो प्लीज नोट दैट आपके पास ये 3 और 4, तो ये पॉइंट है। तो आपको ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए जो ये वाली है, ये एक्चुअल ये वाली है, पासिस थ्रू दिस वन। तो इस स्ट्रेट लाइन की आपको इक्वेशन चाहिए। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली आपको पहले स्लोप को कैलकुलेट करना है। तो स्लोप को बेटा कैलकुलेट करने के लिए आपके पास अब दो पॉइंट्स हैं। इसका स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा? अब ये पॉइंट अगर आपके पास -2 -1 है और आपके पास जो दूसरा पॉइंट है वो 3 4 है, तो स्लोप को हम लोग आमतौर पर स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो ये आपके पास m की वैल्यू क्या होगी? फार्मूला आपके पास लेक्चर के स्टार्ट ही हमने यहाँ से किया था, राइज ओवर रन मीन डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या होगा? 4 -1 एंड डिवाइडेड बाई 3 -2। कि आपने 4 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करना है एंड डिवाइडेड बाई 3 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करना है, एंड अल्टीमेटली यू विल हैव 5 डिवाइडेड बाई 5 एंड द आंसर इज 1। स्लोप जो है क्लियरली वी आर हैविंग 1, स्लोप हमारे पास 1 आ गया है। अब पॉइंट आप ये वाला इस्तेमाल करें या ये वाला इस्तेमाल करें, दोनों से ही यू विल गेट द सेम सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन सेम मिलेगा। क्योंकि ये अगर लाइन के ऊपर ये दोनों पॉइंट लाई करते हैं, इन दो के अलावा जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता होगा आप देखेंगे कि वो आपको सेम सोल्यूशन देगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास क्या थी? पॉइंट स्लोप फॉर्म इज दिस वन, पॉइंट स्लोप फॉर्म वो ये थी y - y1 mx - x1। अब यहां पे y माइनस, अब आप इस पॉइंट को इस्तेमाल करना चाहें या इस पॉइंट को, ये आपकी चॉइस है। दोनों से ही आप देखेंगे कि सोल्यूशन आपको सेम मिलेगा। तो मैं y1 इसको यूज करता हूं, y - y1 की जगह पर क्या है? वी आर हैविंग -1। m आपके पास स्लोप कितना है? x है, तो x माइनस और x1 की क्या है वैल्यू? -2। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स को जरा एहतियात से, तो इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, so after simplification you will get y +1 माइनस प्लस, और ये 1 आपके पास x +2 आ जाएगा, x +2। सो दिस इंप्लाइज दैट आप इसको इस तरफ से शिफ्ट करना चाहेंगे तो y - x, ये -x एंड 2 इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा, 1 - 2 इज -1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो y - x इज इक्वल टू 0, या फिर अगर आप इसको ऐसे लिखना पसंद करें तो यू कैन राइट इट x +1। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। सो दिस इज द वे। देखें अब यहां पर एक बात की, जस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन, आपकी तसल्ली के लिए, एक पॉइंट अगर आपने ये वाला यूज किया है, अगर आप इसको यूज करेंगे, देखें पॉइंट स्लो फॉर्म में अगर मैं इसको इस्तेमाल करता हूं, ये देखें जी, प्लीज चेक इट। सेकेंडली y माइनस, अब y1 की जगह पे मैं 4 लिखता हूं और ये दिस वन m की जगह पे, सॉफ्ट जाहिर है स्लोप में तो तब्दीली नहीं हो सकती, स्लोप तो लाइन का यूनिक होता है। तो ये आपके पास x माइनस x1 आपके पास कितना है जी? दिस केस 3। अब इस पॉइंट के बजाय मैं इस पॉइंट को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि आपके पास रिजल्ट क्या आता है? ये y - 4 इज इक्वल टू x - 3। तो आप यहाँ पे y इज इक्वल टू x - 3 और ये आपके पास +4, मैंने 4 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया है। साफ ज़रा जब एडिशन सब्ट्रैक्शन इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ जाती है तो वो सिंबल को केयरफुली आप डील किया करें। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x, 4 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे
तो यू विल गेट दी +1। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सोल्यूशन इज द सेम। तो पॉइंट जो है अगर लाइन के ऊपर लाई करता है तो इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, रिमेंबर दैट कि अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन हो तो पहले नंबर पे स्लोप को कैलकुलेट करें और उसके बाद आप पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करें और उसको यूज करने के बाद आप बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को। तो दो बातें जो छोटी छोटी और मुख्तसर सी कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। आप जानते हैं कि लाइन पैरेलल होती है अगर उनके दरमियान एंगल जो है वो जीरो हो, जो कभी इंटरसेक्ट ना करें। जिस तरह रेल मूव करते हैं, उसकी पटड़ी है, ठीक है जी, वो कभी आपके पास इंटरसेक्ट नहीं करती। कार के दो व्हील्स हैं जब चल रहे होते हैं तो वो पैरेलल हैं। तो परपेंडिकुलर, ये देखें जी, अगर आपके पास ये एक लाइन है, ये वाली लाइन L1 है और ये वाली लाइन L2 है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। इसको यूं लिखा जाता है L1 इज पैरेलल टू L2। ये सिंबल पैरेलल की है। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, इसका स्लोप अगर M1 है तो इसका M2 है। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो बेटा इनके स्लोप्स जो होंगे वो बराबर होंगे। पैरेलल लाइन में अगर एक लाइन सावधान, हर लाइन का स्लोप तो होगा सिवाय परपेंडिकुलर लाइन के। तो अगर L1 एक लाइन है जिसका स्लोप M1 है, L2 लाइन है उसका स्लोप M2 है, तो अगर वो लाइनें पैरेलल हैं तो उनका जो स्लोप्स होंगे वो बिल्कुल बराबर होंगे। और लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं, ये अगर आपके पास एक लाइन ये वाली L1 है और ये वाली लाइन L2 है, साफ ज़ाहिर है इसका स्लोप अगर आपके पास M1 है, इसका स्लोप M2 है। तो अगर लाइनें परपेंडिकुलर हैं और उनके स्लोप M1 M2 रिस्पेक्टिवली हैं तो याद रखिएगा कि इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। यानी कि अगर लाइन L1 का स्लोप M1 है तो M2 को निकालने के लिए नेगेटिव यानी कि सिंबल को तब्दील करके उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो आप इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइंस का आपस में स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द शॉर्ट समरी ऑफ द टुडेज लेक्चर इज दिस वन। हमने क्या किया है, स्लोप को डिफाइन किया है मुख्तसरन। स्लोप क्या है, अगर आपके पास दो पॉइंट हो, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जो है दैट इज द राइज, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जो है दैट इज रन। तो राइज ओवर रन आपके पास जो होगा ये स्लोप को डिफाइन करेगा। स्लोप की मदद से हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म को डिफाइन किया और कोई पॉइंट अगर आपके पास गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो उसकी मदद से हम बड़ी आसानी के साथ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। फिर तीसरी बात, अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन हो तो आप पहले उनका स्लोप कैलकुलेट करेंगे, फिर आपके पास पॉइंट गिवन होगा तो पॉइंट स्लोप फॉर्म को अगर आप यूज करेंगे तो देन यू विल बी एबल टू राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर पैरेलल लाइंस क्या होंगी, दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी अगर उनके स्लोप्स जो हैं वो बराबर होंगे, और दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो वो कब होंगी, जब उन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। तो ये स्लोप्स और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको कुछ बात वजाहत करने की कोशिश की गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।